voices. Before starting this chapter, first let us understand the psychological reasons behind the formation of an active or passive voice statement. आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता होती है जिस वजह से जब एक सेंटेंस डायरेक्टली एक तरह से बन सकता है तो हमें फिर उसी सेंटेंस को दूसरी तरह से बनाने की आवश्यकता एक्चुअली पड़ती क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? इफ वी फॉर्मेट इट in one set pattern, then why do we need different patterns of formation of the same sentence? Suppose by mistake you have broken the bat of your friend, or deliberately, knowingly you have broken his bat. He comes to you and he suddenly asks from you, who has broken my bat? Many people are standing over there and he is suddenly asking, who has broken my bat? And you want to tell him, you are not afraid of him, you just want to inform him that yes, of course, it was you who has broken the bat. So you go to him and say to him, I have broken this bat. I have broken this bat. So you want to inform him that yes, it was you who has broken the bat. Okay. Now, suppose on the same day you return to your home, directly you go to your kitchen to have water, and suddenly by mistake there was a cup beside you. And suddenly by mistake you hit the cup and the cup falls down and it is completely shattered. And your mother listens the voice and she comes suddenly to the kitchen and she asks, who has broken this cup? Who has broken this cup? Now you are very much terrified because you know it very well that your mother is going to beat you. So first you want to hide, then anyhow you gather up your courage and you go to your mama and you will say, Mama, it was broken by me, or it is broken by me. Now see what happened over here. In the first statement, when you informed to your friend that you had broken the bat, in that statement, while speaking that statement, you were in your active form. You were not afraid of. And at that time, the pitch of your tone was very high. And you wanted to highlight yourself. Yes, it was I. I'm not afraid. Indirectly, you want to tell him that yes, of course, I was not afraid of you. So you are in active form. But here, because you were scared of your mother, so what you did actually, you wanted to divert the mind of your mother from you to that cup. Okay. So at that moment, the pitch of your tone suddenly got lessened. It came into passive form. Passive. What is the meaning of passive? Passive क्या होता है? Boring हो जाना, नीरस हो जाना actually, है ना? नीरस हो जाना, थोड़ा सा डल हो जाना voice का, ठीक है? Because you were afraid, ठीक है? तो ऐसी condition में somewhere for some moment, for diverting the mind of your mother from you to that cup, कि शायद उनका जो गुस्सा है थोड़ा सा क्या है, शांत हो जाए, ठीक है? So that is why you suddenly, and you just said that it was broken by me. So overall, we can say here, it depends on you that to what thing you want to highlight. You want to highlight to the subject in your sentence, or you want to highlight the object in your sentence. You want to highlight the subject of your sentence, or you want to highlight the object of your sentence. Okay, if you want to highlight the object of your sentence, अगर sentence में importance object की ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है. तो जब हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन की तरफ मूव होना होता है. लेकिन जब आप
हाईलाइट करना चाहते हैं आपके मेन सब्जेक्ट को, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक्टिव वॉइस यानी कि जो कॉमन हमारे टेंस का जो स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में सेंटेंस को बनाना होता है. ओके, so thus we are going to start our chapter voices from today onwards. Let us see how many parts I am going to make of this chapter. First I will start obviously with introduction, then kinds, and then step by step I will let you know. Okay, and before yes, of course, one important thing, after each lesson you will get exercises also. Okay, you will get exercises also through the video or through my website. I will share with you links also. So step by step ये आपको ज़रूर करना है कि first of all you will not break. Okay, you will not take breaks if you are starting to learn passive voices. Okay, you will not take break. After each chapter I will provide you a link. Through that link you will go and will try to make sentences, quizzes और sentences आपको मिलेंगे बनाने को. तो आपको sentences यानी कि बिल्कुल इस तरह से पढ़ना है कि properly. अगर आप exercises नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है ग्रामर का कोई भी पार्ट पढ़ने का. ठीक है, तो इसी वजह से चैप्टर पढ़ने के बाद लेसन को समझने के बाद आप एक्सरसाइज करते जाएंगे. ठीक है, एंड यस ऑफ कोर्स इफ यू आर न्यू एट माई चैनल एंड इफ यू रियली विश टू लर्न ग्रामर प्रॉपरली, एवरी चैप्टर ऑफ ग्रामर प्रॉपरली, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंटिन्यू द लेसन्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच पार्ट ऑफ ग्रामर प्रॉपरली. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट आवर क्लास बर्ड्स ऑफ विजडम. Voices. So as we all know that there are two kinds of voices in grammar, active voice and passive voice. Now what is the basic difference between an active voice and a passive voice? When an action is performed by the subject, when an action is performed by the subject, you can say directly. Okay, for example, Shyam broke a toy. Shyam broke a toy. Ravi killed a snake. तो इस टॉय को किसने तोड़ा? श्याम ने. स्नेक को किसने मारा? रवि ने, है ना. तो ये जो एक्शन था broke और killed, that has been directly performed by these two subjects. Broke with Shyam by Shyam and killed by Ravi. Okay, तो जब एक्शन जो होता है डायरेक्टली परफॉर्म किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, that form of voice, that form of action is called active voice. But passive voice do not show the actions done by the subject, but they express how the subject is affected or suffered by the subject. The snake was killed by Anil. The beggar was died. The thief was caught. तो यहाँ पर हम तीनों सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो एक्चुअल डूअर नहीं हैं एक्शन करने के. ठीक है, वो एक्चुअल एजेंट नहीं है, वो एक्चुअल डूअर नहीं है, वो सफरर हैं. ठीक है, वो विक्टिम है. वो कोई भी एक एक्शन हुआ है उस एक्शन को सफर कर रहे हैं. ठीक है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि subject in passive voice, subject in passive voice is actually a sufferer or a victim. sufferer, victim और पॉजिटिव वे में भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो पैसिव वॉइस में जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो किसी न किसी तरह से अफेक्ट होते हैं. Okay, subjects in passive voice are anyhow affected by any action or affected by the object. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अफेक्ट करने वाले हैं होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का जो भी एक्शन होता है वो किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करता है हमारे सब्जेक्ट को. ठीक है, और इसी वजह से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द बैगर वॉज डाइड. आई हैव नॉट रिटन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, आई हैव नॉट written object over here also. क्यों? क्योंकि
क्या होता है कि पैसिव वॉइस में कई बार क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, तो कभी कभी हम उस ऑब्जेक्ट को हम डिसअपियर भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। द beggar was died. We actually wanted to highlight the beggar. Beggar was died anyhow due to maybe due to bitter cold at night, due to any reason, जो भी है, लेकिन वो बैगर की तरफ हाईलाइट करना चाहते हैं। The thief was caught. Obviously it would be caught by either by police or by people. ठीक है, तो people और पुलिस है, ठीक है, तो ये हमारे क्या इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो द थीफ वॉज कॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये तो बेसिक डिफरेंस होते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, कि जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें कि जो डायरेक्टली सब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली हमारे एक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो भी एक्शन होता है वो सब्जेक्ट को एक्चुअली किसी न किसी तरह से अफेक्ट करने वाला होता है, ठीक है। दीज आर टू बेसिक differences. Let's start the rules. So rule number 1, replace the subject with the object and object with the subject. Subject यानी कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इफ आई से यू कैन अंडरस्टैंड सिंपली, जब हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो हमारे जो रूल्स जो बनते हैं उसी का जस्ट अपोजिट जब हम करेंगे तो हमारे एक्टिव वॉइस बन जाएंगे। तो एक्टिव वॉइस सिंपली आर योर टेंसेस, those tenses are not very, if you know the tenses, so passive voice is not very hard for you to understand, okay। So the rule number 1, active subject is replaced with object and object is replaced with subject. Shyam broke my bat. My bat was broken by, Satyam broke my bat and my bat was broken by Satyam. Okay, तो हमने क्या किया, रिप्लेस किया सब्जेक्ट को। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, use of an appropriate form of verb be. Use of an appropriate form of the verb be. बी फॉर्म। अब आपको जैसे पता है, हमने टेंस में पढ़ा था कि बी इन प्रेजेंट टेंस बी मीन्स इज, आर, एम। इन पास्ट टेंस वॉज और वर्ब। इन फ्यूचर टेंस विल बी और शैल बी। कॉन्टिन्यूअस टेंस being, perfect, being, and then if you are having sentence in infinitive means 2 plus first form of the verb, in that condition we have to use be, to be, okay। अब इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से। जो बेसिक थिंग है वो यहाँ पर हमको ये समझनी है कि जैसे कि टेंस में फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंसेस है उसमें हमने कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज जो होता है कि वो नहीं करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमको क्या ध्यान रखना है, इन पैसिव वॉइस वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड दैट वी विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन ऑल दी sentences of passive voice, or simply we can say in all the tenses, in all the passive voices, in all the tenses we will have to use helping verb, okay। and वो किस तरीके से करेंगे that we will understand in the coming chapter, okay। so rule number 1, convert subject into object and object into subject. Rule number 2, placement of correct use of be form of the verb. Next point number 3, always use the past participle of the verb, that is V3, third form of the verb. My bat was broken. Her purse has been stolen. The lion was captured. My bat was broken. Her purse has been stolen and the lion was captured. तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही सिंपल है समझने की। अगर हम टेंस कर रहे हैं, अगर हम टेंस करते हैं तो हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब को बहुत ध्यान रखना होता है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस तरीके से हमको याद रखना पड़ता है माइंड में। लेकिन पैसिव वॉइस में हमको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ V3 का ही यूज करना है और कोई चेंज वर्ब में नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, यूज अप्रोप्रिएट preposition before the subject, that is before the object। ओके, सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला, या फिर हम इसको सिंपल कह सकते हैं, सब्जेक्ट ना ही लिखे तो इसको ज्यादा बेटर होगा, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे हम, ठीक है, बिफोर द ऑब्जेक्ट। एन आउल हैज बीन सीन बाय हिम, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है यानी कि इस एक्शन का जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, उस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या है, बाय का यूज करेंगे या फिर किसी और प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। Most of the students are confused with the usage of by or any other prepositions. Many people think that in passive voice only by is used before the object, but this is not very true. Placement of a preposition is decided with the rules of prepositions, common rules of preposition or rules of fixed prepositions. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस में, वो अफेक्ट होता है, उसका जो प्रपोजिशन जो है वो अफेक्ट होता है हमारे जो भी फिक्स्ड प्रपोजिशन से या फिर प्रपोजिशन के जो भी रूल्स होते हैं उससे, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन, सिंपल अगर हम देखें तो इस बात को कभी कभी जैसे कि आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ बाय का यूज करें, कहाँ प्रपोजिशन किसी और प्रपोजिशन का यूज करें, तो ये भी थोड़ा सा हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम कह सकते हैं 95% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि लिविंग बीइंग नाउन या प्रोनाउन जैसे होते हैं, उनमें क्या होता है कि बाय का यूज होता है 95% केस में, जो लिविंग बीइंग की बात होती है। नाउन्स हैं जैसे बाय रवि, बाय रुचिका, बाय नम्रता, है ना, यहाँ पर बाय हिम, बाय हर, ठीक है, जितने भी हमारे प्रोनाउन है सारे हमारे लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग यानी ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एनिमल्स है, कुछ भी है, ठीक है, तो मोस्टली बाय का यूज होता है। बट स्टिल देयर इज वन केस, इन सम केसेस कॉमन और फिक्स्ड प्रपोजिशन रूल्स आर अप्लाइड in with noun and pronouns, means living being also. For example, he was astonished at his son. I am pleased with my daughter. So here we can say both are living beings. Both are living beings. Still we are using another prepositions because these are fixed prepositions. These are fixed prepositions. Okay, in the same way pronouns. I was astonished at him. Gandhiji is known to everyone. I shall be obliged to you. So these are some fixed preposition. यहाँ पर हमने कहीं पर भी by का यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 95% जो केसेस होते हैं उसमें जो लिविंग बीइंग होते हैं उसमें बाय का यूज होता है। इसके अलावा हमारे जो फिक्स्ड प्रपोजिशन के जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं, कहीं पर जो कॉमन रूल्स होंगे वो भी अप्लाई होंगे। प्रपोजिशन जो चैप्टर है इसके बाद वॉइसेस के बाद हम प्रपोजिशन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे कि आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो ये माइंड में रखिएगा। अब इसके बाद आता है if you are having non-living things, okay, if we are talking about non-living things, or we can say our object is a non-living thing or any abstract idea, ठीक है, एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जब हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग की, जब हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की, यानी कि जब नॉन लिविंग थिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हमारे जो ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उनसे पहले जो प्रपोजिशन होते हैं वो हमारे जो भी प्रपोजिशन के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही अप्लाई होगा या फिर फिक्स्ड प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ सी स्टिक इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ओके, सो विथ a stick, okay. I am pleased with your performance. Performance, what is this? Is non-living object. This is non-living object. Performance, it is an abstract idea. It is an abstract idea. In the same way, drawing is again an abstract idea. And with interested, we always use in with please. We always use with, ठीक है। और स्टिक क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है,
ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, विद का यूज किया। ठीक है, तो ये मतलब देखिए ये क्या है, ये मैं आपको एक सिंपल तरीके से बस समझा रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपका जब भी कंफ्यूज हो जाएं कि बाय का हम यहाँ पर यूज करें या फिर यहाँ कोई और प्रपोजिशन का यूज होगा, तो माइंड में ये बात रखिएगा, दिमाग में ये बात रखिएगा कि अगर लिविंग बीइंग की बात हो रही है तो 95% केस से आपका बाय का ही यूज होगा। लेकिन अब हमको वहां पर हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कॉमन वर्ड्स जो होते हैं वो अगर आप थोड़ा सा बोल करके भी देखेंगे, सेंटेंस को बोल के भी देखेंगे, आप उसको कैच कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पर बाय का यूज नहीं होगा। लेकिन अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग थिंग है या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो ऐसे केसेस में कोई और प्रपोजिशन का यूज होगा। अब वहां पर आपको प्रपोजिशन के रूल्स ध्यान रखने होंगे। क्लियर? तो ये हमारे रूल्स है। एक लास्ट रूल है हमारा, द वर्ब मस्ट बी अग्रीड विद द सब्जेक्ट। द वर्ब मस्ट बी अग्रीड विद द सब्जेक्ट। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। दिस बॉय हैज ब्रोकन दीज चेयर्स, दीज चेयर्स हैव बीन ब्रोकन, हैज ब्रोकन दीज चेयर, दीज चेयर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अर्लियर वी वर हैविंग सब्जेक्ट that was singular in number, so that is why our helping verb was also singular, but here these chair, यहाँ पर जो these chair है, these chairs है, ये प्लूरल है ना, तो इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में लेनी होगी। अभी दिखने में बहुत इजी लग रहा है पर ये कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट्स अक्सर इसको करते समय गलती कर देते हैं कि वो सब्जेक्ट को तो चेंज कर देते हैं पर वो भूल जाते हैं वर्ब को चेंज करना, वो वर्ब को वैसा का वैसा ही बना देते हैं। ठीक है, I am eating different chocolates. I am eating different chocolates. Different chocolates are being eaten by me. तो यहाँ पर हमने क्या ध्यान देना है, आई के साथ तो हम एप का यूज करते हैं नो डाउट, बट यहाँ पर डिफरेंट चॉकलेट्स है, तो चॉकलेट्स है प्रेजेंट डेफिनेट है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो आर बीइंग V3। ओके, तो चॉकलेट्स के साथ क्या होगा, आर यूज होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सब्जेक्ट को चेंज किया तो हमारे माइंड में ये भी रखना है, हमको माइंड में ये भी रखना है कि उसकी जो वर्ब है वो भी चेंज होगी। ठीक है, तो जब भी आपको ऑप्शंस के रूप में सेंटेंसेस मिलते हैं करने को, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी यानी कि ABCD करके जब भी आपको ऑप्शन के रूप में आंसर्स मिले तो आप कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले जब भी सेंटेंस आए उसको बना करके देखिए, यानी लिख करके देखिए प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद ही चूज करिए अपना जो भी ऑप्शन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, आपको रीड ही नहीं करना ऑप्शन, आप सीधा सीधा आपको एक्टिव पैसे वगैरह अच्छे से आते हैं तो पहले एक्टिव के सेंटेंस को पैसे में या पैसे को एक्टिव में चेंज करिए और उसके बाद उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो these are some basic root points that you will have to keep in your mind while changing an active voice into passive voice. Okay, now we will understand how to change an active voice into passive voice according to different tenses.